training job, DLED, second year, session 2019 to 2021 of Chanakya College of Education, Bethian. Today we have studied the topic Principle of Teaching English or Principle of Teaching Second Language in India. We know that English is treated as second language in India. We have already studied that mother tongue or first language is the language that the child acquires from his mother and immediate natural environment. But second language is learned in schools. English is also a second language. It is not a native language. It is the language of the English. Though it has been blossomed in the soil of India, nowadays. So there are many principles which should be followed in the teaching learning of second language. Number one, principle of naturalness. The mother tongue is always learned easily because there is a natural environment of learning mother tongue. The mother tongue is spoken in the environment created by the neighborhood. From the beginning, the child listens to his parents, brother, sister, friends, talking in that language. He writes with that language and speaks with that language. In this way, natural environment, mother tongue learning is created around him. But this is not true with foreign language. The child encounters this language all of a sudden in one of the classes and only for 3 weeks. Therefore, it becomes difficult for him to learn the second language. Here is a natural environment should be provided. उसमें है कि एक प्रकृति का सिद्धांत हो गया। अगर इसलिए भी जाता है कि उसके परिवार में भी बोला जाता है माता परिवार मेंबर है ना अच्छा जो है सुबह से अदर चलता है शाम के समय में भी अदर में बात सुनाता है इसलिए उसे नेचुरलनेस का बोध होता है प्रकृति पर ज्ञान का बोध होता है लेकिन अंग्रेजी के साथ ऐसा नहीं है अंग्रेजी जो है क्लास में मिलता है उसके घर पर इसका कोई वातावरण नहीं मिलता है so hence a natural environment should be provided इसलिए एक प्राकृतिक वातावरण को दिया जाना चाहिए कैसे होगा talk to students in foreign language in the class playground etc बच्चों से सेकंड लैंग्वेज में या फॉरेन लैंग्वेज में बात करना चाहिए चाहे वो क्लास में हो या खेल में and it should be done friendly teacher should do it friendly जिस प्यारे मित्र से मित्रवत शिक्षक से मित्रवत बात करनी चाहिए दूसरा पॉइंट
encouraging the students to converse in only this language because John Mason says to make a language natural, it must be spoken. इस लैंग्वेज को बनाने के लिए इसको बोला जाना चाहिए. It is useless and impossible to make a language usable that exists only on the written pages. उसको बोलना चाहिए थी. केवल लिखने से काम नहीं चलता. तीसरा है arranging for group discussions. छात्रों में ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए. किसी टॉपिक पर उन बोलने का मौका देना चाहिए. दूसरा है एक्सपोजर करते हैं अधिक करके. The child learns the other tongue more rapidly because he exposed to the environment where the language is spoken and written. ये छात्र जो है मदर टंग के साथ से उठता है क्योंकि वह अपने अदर टंग के लिए से ज्यादा उसको लगा खुला होता है. In all the places of social exposure, सामाजिक प्रकार के जगह है, चाहे वो मार्केट हो, सिनेमा हो, रेडियो टेलीविजन हो, स्टेशन क्लब हो, either finds people talking in other tongue or posters, है ना साइन written in other. और चारों मदर की बात है, चाहे मार्केट हो या टेलीविजन चाहे रेडियो पर हो, है ना, चाहे चारों मदर बात है. इसीलिए वो ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है. तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन. Language learning is a skill like learning cycling, swimming. या जो लैंग्वेज लर्निंग है एक प्रकार का कौशल है. जिस प्रकार हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं. लैंग्वेज इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. या सभी भाषाओं का यंत्र है, टूल्स है. सो इट शुड बी ऑटोमेटिक. इसको चालू होना चाहिए. ये हैबिट इसको एक हैबिट बनना चाहिए. इट शुड बी लर्न द point that little or no effect made to speak it. Thompson and Waya call it unreflective. Language learning is essentially habit-forming process. या पलामर कहते हैं. लैंग्वेज लर्निंग है, भाषा सीखना है. वह एक हैबिट-फॉर्मिंग प्रोसेस है. आदत निर्माण प्रक्रिया है. Process we acquire new habits. ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नई आदतें सीखते हैं. छात्रों में निम्नलिखित प्रकार की आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए. पहला है निम्नलिखित प्रकार की आदतों का लिसनिंग टू साउंड्स एंड पहला है हैबिट ऑफ listening to sounds and distinguishing between sounds की आदत होनी चाहिए. दूसरा है हैबिट ऑफ की आदत प्रॉपर इंफॉर्मेशन अंतर बताने की जो है चाहिए. दूसरा है हैबिट ऑफ स्पीकिंग विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन, उदाहरण के साथ.
ऐसे उचित उतार अब जो है चढ़ाव के साथ, प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, उचित उतार चढ़ाव के उचित साथ अनुदान के बोलना साथ, चाहिए। उचित उतार उतार चढ़ाव के साथ, चढ़ाव जिस तरह से एक म्यूजिशियन जो है उतार संगीतकार चढ़ाव के साथ और गीत गाते समय ऊपर की ओर ले जाता है, चढ़ाव जिस तरह से नीचे उतारता है, एक फिर ऊपर म्यूजिशियन जो है संगीतकार वह गीत गाते समय दूसरा है ऊपर की ओर ले जाता है लय, हैबिट फिर ऑफ उसको धीरे धीरे नीचे इमिटेटिंग, फिर ऊपर ले जाता है, नकल करने की आदत, बोलने की आदत। दूसरा है हैबिट ऑफ इमिटेटिंग, हैबिट ऑफ इमिटेटिंग, नकल करने की आदत, हैबिट ऑफ बोलने की स्पेलिंग, हैबिट ऑफ की आदत, imitating, हैबिट ऑफ रीडिंग अलाउड हैबिट ऑफ विद repeating, एग्जैक्ट आर्टिकुलेशन दोहराने की और आदत, जोर जोर से हैबिट बोलने ऑफ की आदत, स्पेलिंग, हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग, हैबिट ऑफ रीडिंग अलाउड विद हैबिट ऑफ यूजिंग वर्ड्स इन देयर प्रॉपर और कंटेक्स्ट, जोर जोर से पढ़ने उचित की आदत, प्रसंग में हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग, उचित मौन शब्दों पढ़ने का की प्रयोग, आदत, हैबिट हैबिट ऑफ ऑफ यूजिंग वर्ड्स इन देयर प्रॉपर correct कंटेक्स्ट, ग्रामर, उचित प्रसंग में शुद्ध ग्रामर जो है शब्दों का पढ़ने प्रयोग, की आदत, हैबिट ऑफ यूजिंग फिर है यूज करने की आदत, ग्रामर, हैबिट ऑफ करेक्ट शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर जो है शुद्ध उच्चारण पढ़ने की करने की आदत, आदत, हैबिट ऑफ फिर कंसल्ट है डिक्शनरी, यूज करने की आदत, हैबिट डिक्शनरी ऑफ कंसल्ट करने करेक्ट की आदत, प्रोनाउंसिएशन, हैबिट ऑफ शुद्ध उच्चारण करने की आदत, लाइब्रेरी में जाने की consulting आदत डालना dictionary, चाहिए, हैबिट ऑफ डिक्शनरी रीडिंग कंसल्ट करने न्यूज़पेपर्स, की आदत, जर्नल, हैबिट ऑफ मैगजीन, लाइब्रेरी, स्टोरी बुक्स, लाइब्रेरी में जाने की आदत डालना चाहिए, अंग्रेजी में न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जर्नल्स पढ़ना चाहिए, मैगजीन्स पढ़ना चाहिए, स्टोरी बुक्स पढ़ना चाहिए। चौथा है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, Principle of using जर्नल्स mother पढ़ना tongue. चाहिए, When we मैगजीन learn पढ़ना चाहिए, language, we face the universe चौथा है directly and learn to Principle of promote using it to mother the tongue. speech. When we When learn we the learn second language, we learn to language, we interact face with the the words universe of the language directly and already learn to know. promote it with the speech. इसमें क्या है? When we learn the second language, Lingualism we learn to is filter not and our converse through the weakness. language already. Rather it is known. our इसमें strength. क्या है कि बहुभाषिकता मतलब एक multilingually से अधिक भाषाओं की is not our तो हमको जो है सेकंड लैंग्वेज Rather के it is समय our मदर टंग का भी प्रयोग बच्चों को बहुभाषिकता करना मतलब चाहिए, एक से अधिक एटलीस्ट भाषाओं इट के शुड बी डन। तो हमको जो है सेकंड लैंग्वेज सीखने नेक्स्ट के है समय मदर टंग का भी ऑर्डर प्रयोग एंड बच्चों को करना देना चाहिए, एटलीस्ट इट शुड बी डन। द फोर्थ डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व इन लैंग्वेज लर्निंग आर अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। The four distinct Because activities there are involved four in basic language skills: learning are listening, understanding, speaking, reading and writing. reading and अंडरस्टैंडिंग इज और हिडन, छूट गया there are four Listening basic and skills: listening, speaking, reading जब तक and कोई writing. बात सुनेगा Understanding उसको is कहीं hidden. समझेगा नहीं, Between listening and उसका उत्तर जो है वो सही नहीं दे पाएगा। जब तक पांचवा कोई है बात सुनेगा और उसको कहीं समझेगा नहीं तो फिर Passive उसका and active उत्तर जो है वो सही नहीं दे पाएगा। पैसिव वोकैबुलरी क्या पांचवा है? है पैसिव वोकैबुलरी है वह छठा है the passive प्रिंसिपल ऑफ vocabulary are पैसिव एंड recognized एक्टिव वोकैबुलरी। and understood पैसिव वोकैबुलरी क्या है? By- पैसिव वोकैबुलरी है but by never used in a पैसिव speech, वोकैबुलरी आर words recognized and understood about which we know by but we never used in a speaking. never use in our daily life. Those words It is called passive vocabulary. about which we Active know vocabulary है but we those words about never which use we in know our daily life. and ever It use, is called always passive use vocabulary. in our daily Active life. vocabulary It is है called active vocabulary. those words Teachers about should which we know and try ever their use, always use to in our make daily life. passive is called vocabulary active vocabulary. into active. A teacher should try his उसके best बाद है the to principle of make passive motivation. vocabulary Students should be into motivated active. to learn more and more. उसके बाद है the principle of यही सब है। motivation. इसको Students should be motivated करना है, आता है राइट एंड learn more and more और English. राइट एंड तो सिक्स यही सब है। प्रिंसिपल्स ऑफ उसको टीचिंग थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना है। आता है राइट एंड 5 स्टे एट होम और राइट एंड 6 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग
English. Thank you. Stay at home and be